Hello everyone, welcome to my channel and this is the second video of Laravel interview questions playlist. So let's continue with our next question. What is helper function? The helper function is the global function that can be called from both the controller and view. The PHP and Laravel offer similar essential tasks that can be performed from all ends of the application. The user sometimes needs to be customize such functions to fetch tasks in the controller and view. For example, if the user customizes the helper function to bring the user's email ID to log into the application, it can be executed. According to the user preference, the location of helper files is used and the suggested location is app/helper.php. Okay. तो हेल्पर होता क्या है? हेल्पर एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू अगर आप कोई भी क्वेरी लिखते हैं और वो ऐप के अंदर हेल्पर डॉट पी फाइल है वहां पे आप बनाते हैं, सपोज एक फंक्शन आप बनाए, वो एक ग्लोबल फंक्शन हो गया। अब आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो कंट्रोलर हो, चाहे वो आपका ब्लेड फाइल हो, आप दोनों में से कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। यही मेन पर्पस है हेल्पर फंक्शन का। और वैसे भी हेल्पर का मतलब ही होता है कि जो फंक्शन बनाया जाए आपके हेल्प के लिए, आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए। एक्सप्लेन रिवर्स राउटिंग इन लारावेल। Reverse routing is a method of generating URL based on symbol or name. It makes your Laravel application flexible, or we can say that reverse routing is a powerful feature in the Laravel framework that allows developers to generate URLs dynamically based on the names of their routes. It enables you to create URLs without hard coding them into your application's code, making it easier to manage and maintain your URLs over time. Okay. तो रिवर्स राउटिंग, सपोज आपने एक राउट बनाया, तो आप उसका कुछ यूआरआई दिए या कुछ उसका नेम दिए, तो उस नेम के बेसिस पे आप उस पे एक उसके राउट को आप रिवर्स करते हैं और वो डायनेमिकली जनरेट होता है। स्टैटिक आप स्टैटिक राउट देते हैं वेब डॉट पी या एपीआई डॉट पी में, और उसको डायनेमिकली आप जनरेट कर सकते हैं और उसमें रिवर्स राउटिंग का कॉन्सेप्ट काम आता है। ठीक है, एक फीचर है, लारावेल का फीचर है ये, जो आपको डायनेमिक यूआरएल्स जनरेट करने का एक फीचर प्रोवाइड करता है। What is named route? Named routes are routes with names. A name is given to the route defined, and the name later can be used in case the user wants to perform redirection. Okay, and this is a simple example that how can we create a named route. Like suppose route, and this is a get method with home URI, and that is the index method present in the home controller. Okay, and the name of that route is capital HOME. Okay, and this is called the named routes, means any routes you have given names to them, that is named routes. Okay, here home is the name of that route. तो नेम्ड राउट होता क्या है? आप सिंपली कोई भी राउट बनाते हैं वेब डॉट पी में या फिर एपीआई डॉट पी में, कोई भी आपने राउट बनाया और उसको आप एक नाम दे रहे हैं, ताकि आप अगर आपको कहीं यूज करना है या तो यूआरआई यूआरएल के बेस पे कीजिए या फिर उसके नेम के बेस पे कीजिए। राउट जो मेथड यूज करते हैं तो उसके लिए आप ये इसका नेम्ड राउट यूज करते हैं। यहाँ पे नेम्ड राउट में जो नेम मेथड है, नेम मेथड के थ्रू ही नेम्ड राउट को देते हैं। What is the difference between get and post method? This is a much simpler question. Main purpose of get method. Get displays the submitted data as part of the URL, but in post data does not show because this information as it's encoded in the request form request. Okay. Get can handle a maximum of 2048 characters. Post has no such restrictions or limitations. Get allows only ASCII data, but post has no restriction. It allows binary data as well. Okay. Normally get is used to retrieve data or deleting the data, but post is mainly used for data insertion and data updation. So get और post के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन कुछ सिंपल हम लोग लेके चलते हैं। जैसे आप गेट मेथड अगर यूज करते हैं तो वो चीज आपके यूआरएल में शो होता है। सपोज आपने लॉगिन के लिए अगर गेट मेथड यूज किया तो लॉगिन में क्रेडेंशियल्स आपने दिया
यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो आपके यूआरएल में वो यूजर नेम एंड पासवर्ड शो होगा। वही अगर पोस्ट मेथड यूज करते हैं तो इसका फॉर्म रिक्वेस्ट में इनकोडेड रहता है, इसीलिए ये सिक्योर रहता है। आप अगर सपोज लॉगिन करवा रहे हैं, कोई भी डेटा अपडेट कर रहे हैं, कोई भी इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप पोस्ट मेथड यूज कीजिए और वो रिक्वेस्ट सबमिट करेगा बिना यूआरएल में सेंड किए हुए। तो गेट मेथड का एक लिमिटेशन होता है कि मैक्सिमम आप 2048 कैरेक्टर्स ही यूज कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट के साथ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि ये तो फॉर्म रिक्वेस्ट के थ्रू जा रहा है। गेट सिर्फ आस्की डेटा को अलाउ करता है, लेकिन पोस्ट का ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये बाइनरी डेटा, सपोज आपको इमेज भेजना है, कुछ पीडीएफ भेजना है या फिर एक्सेल फाइल से अपलोड करने हैं, तो उसके लिए आप पोस्ट मेथड यूज करेंगे। जनरली गेट यूज करते हैं या तो डेटा फेच करने के लिए या फिर डेटा डिलीट करने के लिए, लेकिन पोस्ट यूज करते हैं डेटा इंसर्ट के लिए, अपडेट के लिए। And this is our last question. What is validation and what is the difference between client side and server side validation? Validation is the most important aspect while designing an application. It validates the incoming data. By default, base controller class uses a validate request trait, which provide a convenient method to validate incoming HTTP requests with a variety of powerful validation rules. And this is the difference between client side and server side validation. Client side validation is when the user input is validated by the browser before it is sent to the server, which can be done using HTML attributes, JavaScript, or other scripting languages. But in server side validation, the Laravel action method will validate the form method data against the validation rules. If any of the validation rules fails, an exception will be given to the user with a correct error response. If all validation rules pass, our function will continue to run properly. क्या वैलिडेशन होता क्या है? तो वैलिडेशन एक सिंपल सा एस्पेक्ट है और वो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अगर आप वैलिडेट करते हैं किसी भी डेटा को कि वो प्रॉपर है या नहीं, करेक्ट है या नहीं, उसके लिए आप वैलिडेशन यूज करते हैं। तो लारावेल में डिफॉल्ट रेट्स वैलिडेट्स रिक्वेस्ट नेम से आता है, जिसको आप यूज करके कोई भी रिक्वेस्ट को आप वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो क्या उसमें ईमेल अवेलेबल है या नेम अवेलेबल है या फिर मोबाइल नंबर आप चाह रहे हैं तो वो अवेलेबल है या नहीं, ये सब रिक्वेस्ट वैलिडेट कर रहे हैं उस चीज को। और अगर वो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है डेटाबेस में तो फिर यूनिकनेस के लिए इसके लिए लगाते हैं यूनिक है या नहीं, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का है या नहीं, अगर आप इंडिया में अवेलेबल हैं तो इसके लिए आप वैलिडेशन यूज करते हैं। तो यहाँ क्लाइंट साइड और सर्वर साइड वैलिडेशन के बीच में सिंपल सा एक बात है कि क्लाइंट साइड वैलिडेशन कब यूज करते हैं, जब आपको फॉर्म सर्वर तक नहीं पहुंचाना है, आप फॉर्म जब क्लिक करें सबमिट के लिए उसी वक्त पहले वैलिडेट कर लें, उसके बाद फिर वो सर्वर साइड के लिए भेजें। तो यहाँ पे आप HTML एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, इसके थ्रू आप इसको क्लाइंट साइड के थ्रू वैलिडेशन कर सकते हैं। आप सपोज आपने रिक्वायर्ड लगाया फील्ड HTML में, तो जब तक वो फील्ड फिल नहीं होगा तब तक वो सबमिट नहीं होगा। या फिर जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपने लगाया हुआ है, कुछ वैलिडेशन रूल्स आता है, मेथड्स, अगर आप वो लगाए हुए हैं तो फिर ये वैलिडेट उसको करेगा क्लाइंट साइड से। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक है क्लाइंट साइड का कि ये आसानी से बाईपास हो सकता है, लेकिन आप अगर सर्वर साइड की बात करें तो ये बाईपास होना मुश्किल है। तो सर्वर साइड में क्या होता है, जैसे आप क्लाइंट साइड वैलिडेट कर चुके हैं या फिर आपने नहीं लगाया क्लाइंट साइड वैलिडेशन, आप सर्वर साइड वैलिडेट करना चाहते हैं, तो जो लारावेल का फॉर्म जो आप सबमिट करते हैं, जब फॉर्म क्रिएट करते हैं, उसमें एक्शन मेथड होता है। वही एक्शन मेथड वो लेकर जाता है उस राउट पे, वो राउट वहाँ पे उसको कॉल करता है उस कंट्रोलर में उस मेथड को जिसमें ये वैलिडेशन रूल्स लगा हुआ है, वहाँ पे आपको उस डेटा को वैलिडेट किया हुआ है, वैलिडेशन लगा हुआ है और उसको वैलिडेट करता है। सपोज आपने ईमेल में यूनिक लगाया हुआ है तो वो सबमिट करेगा डेटाबेस में, चेक करेगा सबमिट यूनिक है या नहीं है, अगर यूनिक है तो सबमिट करेगा, यूनिक नहीं है, अगर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है वो ईमेल, तो फिर आपको वो एक्सेप्शन शो करेगा और आपके ब्राउजर में आपको वो एरर दिख जाएगा अगर वैलिडेशन रूल वो फेल हुआ तो। नहीं, अगर वो सही है तो फिर प्रॉपरली वो पास करके उसको सबमिट कर देगा डेटा। अब इसी तरह आप सारे पे लगा सकते हैं, आप सारे फील्ड्स को, जैसे आप एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपने वैलिडेशन लगाया हुआ कि एड्रेस मस्ट है, ईमेल मस्ट है,
उसका नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ये सारा कंपलसरी है, पासवर्ड कंपलसरी है। तो आप इसके लिए वैलिडेशन फर्स्ट लगाते हैं पहले, उसके बाद फिर देखते हैं कि ईमेल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके लिए वैलिडेशन, मोबाइल नंबर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसके लिए वैलिडेशन, पासवर्ड मिनिमम 6 या 8 जो भी लेके चल रहे हैं वो मिनिमम है या नहीं है, उसके लिए वैलिडेशन लगाते हैं। ओके, सो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड वैलिडेशन के बीच में ये डिफरेंस। और उसके बाद क्लाइंट साइड को तो आसान है पास करना, आपका नॉर्मली या ब्राउजर में जाके इंस्पेक्ट करके आप उसका वो रिक्वायर्ड हटा सकते हैं। रिक्वायर्ड हटाने से ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन ये फेल हो जाएगा, लेकिन ये पास होके डेटा इंसर्ट होने चला जाएगा। इसीलिए क्लाइंट साइड के साथ साथ सर्वर साइड वैलिडेशन लगाते हैं, डबल लेयर ऑफ वैलिडेशन हो जाता है। ओके, थैंक यू।